जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Hello kids, good morning. Today we will see chapter number 2, the moon. Now it is very interesting chapter, right? Because we all know what is moon. We see moon in our everyday life. There everybody have seen moon, right? We see moon at every night and हम वो भी देखते हैं कि कैसे बड़ा बड़ा होता जाता है, कैसे छोटा छोटा होता जाता है आफ्टर 15 days, right? So we are going to study everything about moon, okay? It is very interesting topic. Okay, so as we all know that moon revolves around the earth, right? And earth is the only planet where life exists, right? The scientists are trying to research that is there any other planet on which life exists, but still we don't have any proofs. Okay, so at present we can say that life only exists on earth, right? Okay, so now let us see about moon. Okay, the shape of the moon is spherical, right? It is spherical like sun and other planets. As we know that our earth is also spherical, other planets are also spherical. Same way, the shape of the moon is also spherical, right? And it is made up of rocks and has no air on it. The structure, entire moon is made up of rocks and there is no air on moon. Okay, so when the scientists are going to moon, they have to carry oxygen cylinders, right? Because there is no air on the moon. The distance from the earth is about 3,84,400 kilometers. The distance between moon and our earth is around 3,84,000 kilometers. So हमें यहाँ से ऐसा दिखता है कि moon बहुत नज़दीक है, but it is actually very far away from earth. And moon does not have any light of its own. The moonlight we see, that is only the reflected sunlight. Sorry. सनलाइट जो भी पड़ती है मून पे, वो मून वहीं सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि मूनलाइट है, बट इट इज़ नॉट मूनलाइट, इट इज़ एक्चुअली द सनलाइट ओनली दैट द मून रिफ्लेक्ट्स ऑन अर्थ. Moon does not have any of its own light. Now this is the surface of moon. Surface of the moon is very dry and dusty. एकदम dry surface है moon का. आप देख सकते हो it is covered with craters. Okay, आप ऐसे खड्डे खड्डे जैसा आपको दिखेगा. It is covered with so many craters and mountains and valleys. अब ये क्रेटर्स कहाँ से, खड्डे कहाँ से पड़े मून पे? आपको ऐसा दिमाग में आ रहा होगा, राइट, कि मून पे खड्डे कैसे पड़े? तो एक्चुअली क्या होता है कि इट इज़, देखो ऐसे दिखते हैं क्रैटर्स, इट इज़ क्रैटर्स एंड दे डिफर इन साइज एंड शेप. तो ये ऐसे क्रेटर्स मून पे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि दिस क्रैटर्स आर कॉज्ड बाय द मेटेओराइट्स दैट आर क्रैशिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून. ये जो मेटेओराइट्स है जो स्पेस में घूमते हैं, तो मेटेओराइट्स कभी कभी मून के साथ टकरा जाते हैं, तो क्या होता है, इसी वजह से मून पे क्रैटर्स पड़ जाते हैं. मेटेओराइट्स टकराते हैं, दे क्रैश ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड दे क्रिएट क्रैटर्स लाइक दिस एंड दे डिफर इन देयर साइज एंड ऑल्सो देयर डेप्थ. अगर मेटेओराइट है वो अगर बहुत बड़ा हो और ज़ोर से स्ट्रक हुआ हो तो उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, और अगर छोटा हो
it varies, right? So the craters are different in size and depth, and they are caused by the meteorites which crash on the surface of the moon. Okay, they are big hollows. Abhi surface of the moon is made up of plains and mountains. Plain surface भी है उधर और mountains and valleys भी है. It is made up of plains, mountains and valleys, and also craters तो है ही. Okay. Now the moon is called the Earth's natural satellite because it revolves around it. Okay. The moon is called Earth's natural satellite because it revolves around it. It is 3,86,000 kilometers away from the Earth, and it is the second brightest heavenly body in the sky. जो भी heavenly bodies है sky में उसमें second brightest है moon. Moon shines because of sunlight falling on its surface, right? हमने अभी देखा कि moon की कोई अपनी light नहीं है, but it reflects the sunlight that falls on its surface, and it is the second brightest heavenly body in the sky. Okay? हम कभी मून को देखते हैं तो हम अपनी नेकेड आइज से देखते हैं, राइट? लेकिन मून के बारे में हमें रिसर्च करनी हो, जानना हो ज़्यादा, तो साइंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ बिग टेलीस्कोप्स टू लुक एट द मून. ओके, फिर मून पे जाने के लिए क्या यूज़ किया? Then the rockets were sent to the moon to take the pictures of its surface. पहले ह्यूमन बीइंग नहीं गए, पहले क्या किया? रॉकेट को भेजा कि वो मून की ऑर्बिट में रिवॉल्व करे और मून की डिफरेंट पोजीशन में से पिक्चर ले कि मून लगता कैसे है, दिखता कैसे है, उसकी सरफेस पे क्या क्या है, उधर एयर है कि नहीं. ओके, तो ये सब जानने के लिए पहले रॉकेट को भेजा कि डिफरेंट पोजीशन में से मून की पिक्चर्स लेके आए. मून की ऑर्बिट में छोड़ दिया रॉकेट को, तो वो मून के अराउंड रिवॉल्व किया और दूसरी डायरेक्शन में से पिक्चर्स लेके आए वापस. फिर हमने देखा कि मून कैसा लगता है, कैसा दिखता है, उसके रॉकी सरफेस है, माउंटेन्स एंड वैलीज है, वो सब कैसे पता चला? हमें पिक्चर देख के पता चला कि ओके ये चीज़ें हैं मून पे, मून का सरफेस ऐसा है, उधर एटमॉस्फेयर. फिर बाद में क्या किया? In December 1968, 3 American spacemen went by rocket as close as 112 kilometer from moon. पहले तो खाली रॉकेट को ही भेजा था पिक्चर्स क्लिक करने के लिए. फिर 1968 में फर्स्ट टाइम ह्यूमन बींग्स को भेजा रॉकेट में मून पे. एंड कितने डिस्टेंस तक रखा? 112 किलोमीटर फ्रॉम द मून. And they were Americans. 3 American spacemen were sent to the moon. They were Neil Armstrong, Michael Collins and Edwin Aldrin. ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था फर्स्ट टाइम मून पे. These are the 3 first astronauts, first people to land on the moon. Okay, on 20th July 1969, the spacecraft Apollo 11 landed on the moon. वो जो spacecraft से गए थे वो spacecraft का नाम था Apollo 11 and the date was 20th July 1969. Apollo 11 में ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था फर्स्ट टाइम मून पे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन. And the spacecraft Apollo 11 was landed on the moon. This is the picture of the spacecraft Apollo 11. These are the astronauts. They are wearing everything, carrying the oxygen cylinders, and then went on the spacecraft. And this is the picture of the astronauts on the moon. This is the surface of the moon. ये वो लोग मून पे गए हैं तब की फोटो है. And Neil Armstrong was the first person to land on the moon. जो तीनों गए थे उसमें से सबसे पहला जो मून पे उतरा, the person was Neil Armstrong. He was the first person to land on the moon. His words about landing on the moon, जो सेंटेंस उसने बोला सबसे पहले मून पे जाके वो था, one small step for a man, one giant leap for a mankind. ये मून पे ये छोटा सा मेरा कदम हमारी पूरी दुनिया के लिए, मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा लीप है.
Okay, my small step on a moon is the big leap for mankind. ये हमारी एक सिद्धि थी, हमने मून पे गए and this was a great achievement, right? And ये उन्होंने झंडा लहराया उधर अमेरिका का मून पे. Okay, the first person was Neil Armstrong to go on the moon. Okay, what else we know about moon? It is one of the objects in the galaxy we see in the sky, right? हमें सब कुछ naked eye से नहीं दिखता हमारी sky में, लेकिन moon हम अपनी naked eye से देख सकते हैं and we clearly see it with our bare eyes. पर हम कैसे देखते हैं मून को? कभी एकदम बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, वो it changes its face, right? वो हम देखते हैं अभी कि वो अपना face कैसे change करता है. Sometimes we don't because moon moves around the earth. वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो समटाइम्स वी सी इट एंड समटाइम्स वी डोंट सी इट. ओके, देखो द फर्स्ट जो हाईलाइट किया गया है ऑरेंज कलर का, द हाईलाइटेड पार्ट इज फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, ये अवे फ्रॉम द अर्थ वाला फोटो है, तो इट इज द डार्क साइड ऑफ द मून. ओके, मून है वो रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, राइट, अर्थ के अराउंड. तो ये जो फर्स्ट है वो न्यू मून है, वो अर्थ के अपोजिट साइड वाला है, तो इट इज द डार्क साइड ऑफ द मून. फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद क्या होता है, हमें थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट होता है, सी शेप का होता है. सी शेप इज कॉल्ड क्रेसेंट. ओके, इट इज कॉल्ड क्रेसेंट. तो दिस फेस इज लेस देन द फर्स्ट क्वार्टर. ओके, फर्स्ट क्वार्टर मीन्स 1/4, तो ये 1/4 से भी कम है थोड़ा, इट इज लेस देन फर्स्ट क्वार्टर. फिर थोड़े दिनों बाद कैसा दिखता है, फर्स्ट क्वार्टर जितना, 1/4 जितना. हाफ ऑफ द मून इज विजिबल. ओके, अबाउट अ वीक आफ्टर अ न्यू मून. एक हफ्ते बाद कितना दिखता है, एक हफ्ते बाद आधा दिखता है चांद, राइट. एंड देन आफ्टर इट इज विजिबल मोर देन द फर्स्ट क्वार्टर, राइट. अभी हाफ 1/4 से थोड़ा ज्यादा दिखता है. ओके, 3/4 जितना दिखता है. फिर थोड़े दिनों बाद after 15 days we see the whole moon. it is called full moon. पूरा मून दिखता है. ओके, 15 डेज के बाद जो न्यू मून है मतलब डार्क साइड, और 15 डेज बाद फुल मून दिखता है, राइट. 15 डेज तक ये हमने जो देखा, पहला क्वार्टर हाफ से थोड़ा दिखेगा, फिर फर्स्ट क्वार्टर दिखेगा, और फिर 3/4 जितना दिखेगा, फिर 15th डे पे पूरा दिखेगा, फुल मून दिखेगा. फिर 15 डेज के बाद क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. द लाइट पार्ट ऑफ द मून गेट्स स्मॉलर विच इज लेस देन द फुल मून. पहले 3/4 जितना दिखा हमें वापस. ओके, फिर हाफ दिखा, हाफ पार्ट ऑफ द मून इज विजिबल अगेन ऑन द 3rd वीक ऑफ द मंथ. पूरा ये पूरे महीने का साइकिल है, राइट. 15 डेज पे कितना हुआ, फुल मून. अभी हम जो बाकी के 15 डेज है वो देख रहे हैं. ओके, तो तीसरे वीक जो मंथ एंड है उसका जो 3rd वीक है उसमें कितना दिखेगा, हाफ दिखेगा. एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज सीन लेस देन द लास्ट क्वार्टर. ओके, और फिर वापस क्या होगा, वापस ये साइकिल रिपीट होती जाएगी, देन इट गेट्स रिपीटेड. ओके, तो फर्स्ट 15 डेज में क्या होगा, जो ऊपर के चारों है वो होगा कि फर्स्ट डे पे न्यू मून, फिर घटते घटते 3/4 जितना दिखेगा, फिर 15th डे पे फुल मून दिखेगा, और जो बाकी के 15 डेज है मंथ के वो नीचे के चारों आएंगे कि पहले फुल मून दिखा, फिर धीरे धीरे कम होता गया. ओके, एंड लास्ट 15 डे पे वापस न्यू मून, वापस रिपीट. ओके, तो मून फेसेस लाइक दिस वे इट गेट्स रिपीटेड. और हमें ऐसा क्यों दिखता है, बिकॉज ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो हम जिस साइड को फेस कर रहे होंगे उतना मून हमें दिखेगा, राइट. वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो हमें उतना पार्ट ही दिखता है, पूरा नहीं दिखता है. ओके, तो हमारी पोजीशन के हिसाब से और उसकी रोटेशन एंड रोटेशन के हिसाब से हमें मून दिखते हैं. ओके, तो दिस आर द फेसेस ऑफ द मून. एंड द शेप ऑफ द मून इजंट चेंजिंग थ्रू आउट द मंथ. ओके, मून का शेप नहीं चेंज हो रहा, अवर व्यू ऑफ द मून चेंजेस. ओके, मून का तो शेप पूरा ही है, पर हम किस जगह पे है, उस वो रोटेशन कैसे कर रहा है, उस हिसाब से हमें ये सब फेसेस दिखते हैं. बाकी मून का शेप तो फिक्स ही है, पर हमें क्यों ऐसा दिखता है रोज अलग अलग, बिकॉज
इट कीप्स रोटेटिंग अराउंड, इट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड आवर अर्थ। तो हमारा व्यू चेंज होता जाता है। ओके, मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ लाइट इन सोलर सिस्टम, दैट इज सन। सन ही एक ऐसी लाइट है पूरे सोलर सिस्टम में, बाकी किसी के पास भी अपनी लाइट नहीं है। ओके, मून ऑल्सो डज नॉट हैज इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट इज ऑफ सनलाइट। तो सन के बिना हमें मून भी नहीं दिखेगा, बिकॉज मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। तो हम जो मून लाइट बोलते हैं ना, वो एक्चुअली मून की लाइट नहीं है, वो भी एक सन की ही लाइट है जो मून रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो अगर सन नहीं होगा तो हमें मून भी नहीं दिखेगा, बिकॉज मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। एंड मून का शेप तो फिक्स ही है, पर अपने व्यू के हिसाब से हमें उसके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस दिखते हैं, बट द शेप ऑफ द मून इज राउंड, स्फेरिकल। ओके, शेप ऑफ द मून इज स्फेरिकल, but as it changes its position and revolves around the earth, we see different faces of the moon. Okay, sun's light comes from one direction, it always illuminates or light up half of the moon, side of the moon that is facing the sun. Okay, other side is dark. जब सनलाइट पड़ती है मून पे तो हाफ, ये आप देख रहे हो कि हाफ पोर्शन पे सनलाइट पड़ रही है मून के हाफ, तो हाफ को वो ब्राइट करेगा और आधा हाफ क्या होगा, डार्क होगा। तो जितना सनलाइट उस पर पड़ रही है उतना हमें दिखेगा। ओके, द मून डिस्प्लेस दिस 8 फेसेस वन आफ्टर अदर एज इट मूव्स थ्रू इट्स साइकिल ईच मंथ। इट टेक्स 27 days टू ऑर्बिट द अर्थ। पूरे अर्थ को ऑर्बिट लगाने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए उसको 27 days लगते हैं, और सन उसको जितनी लाइट पोर्शन में हाईलाइट करेगा उतना मून हमें दिखेगा। सन उस पर पूरा पड़ रहा है तो हमें पूरा मून दिखेगा, सनलाइट उस पर आधी पड़ रही है तो हमें आधा मून दिखेगा। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच सनलाइट फॉल्स ऑन द मून एंड व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। It takes total 27 days, that is around 1 month to complete its cycle around the earth. Okay, so these are the phases of the moon. Okay, पहले सनलाइट सपोज ऊपर है तो आधी पड़ रही है मून पे, तो हमें आधा मून दिख रहा है। फिर उसने अपनी पोजीशन चेंज की तो सनलाइट 1/4 से भी कम पड़ रही है तो हमें उतना ही मून दिख रहा है। फिर जब भी okay, so that depends on how much sunlight is falling on the moon and what is the position of the moon, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना मून दिखेगा। ओके, मून की अपनी तो लाइट है नहीं, तो सनलाइट उस पर जितनी पड़ेगी उतना ही मून हमें दिखेगा। और सनलाइट कितनी पड़ती है वो कैसे डिसाइड होगा, मून के ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन के हिसाब से, कि मून अभी कहाँ पे है उस पर डिपेंड होगा कि उस पर सनलाइट कितनी पड़ रही है। ओके, एंड उस हिसाब से हमें मून, फेसेस ऑफ द मून दिखेंगे।